بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی آئندہ سماعت تک اسپتال میں رہیں گے۔ ہفتے میں 1 دن اہل خانہ سے بھی ملاقات کا حکم۔ ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عظمیٰ کو بھی بورڈ میں شامل کرنے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا پی ٹی آئی اور فیملی کو بیان حلفی دینا ہوگا کہ ملاقات کے بعد کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی۔ بانی کے علاج کی رپورٹس پبلک نہ کرنے کی گارنٹی کون دے گا؟ میڈیکل رپورٹس کو سیاست کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم صحت پر سیاست نہیں کریں گے۔ کیس کی مزید سماعت 16 سپتمبر تک ملتوی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر اڈیالہ جیل حکام کو بھی طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کے علاج اور طبی سہولیات سے متعلق درخواست پر 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی آخری امید عدلیہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ انصاف کی امید عوام کے دل میں تھی۔ امید ہے فیصلے پر جلد عمل ہوگا۔ اسپتال کے ارد گرد کوئی جمع نہیں ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ کی ہدایات پر عمل کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق ملاقات کانفرنس روم میں ہوئی، جہاں دونوں بہن بھائی کے درمیان صحت اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ نورین نیازی نے بانی کو سپریم کورٹ کے حکم سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ ملاقات کے بعد نورین نیازی جیل سے باہر آئیں اور داخل ناکے پر پہنچ گئی۔ صحافی کے سوال پر نورین نیازی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بعد میں ڈاکٹر عظمیٰ اور قاسم زمان بھی گاڑی میں پہنچ گئے، جہاں نورین نیازی نے انہیں ملاقات اور دیگر امور سے متعلق بریفنگ دی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو شاندار اور تاریخی قرار دے دیا۔ کہا فیصلے سے عوام میں پائی جانے والی سیاسی بے چینی ختم ہو گئی۔ آج کے فیصلے سے لوگوں کو احساس ہوا کہ عدالتیں ابھی زندہ ہیں۔ قوم جسٹس شاہد وحید کے فیصلے کو سلام پیش کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے اہم ہے۔ فیصلے سے جیلوں میں قید بے گناہ افراد کو بھی رہائی اور سہولتیں ملیں گی۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کے حکم پر حکومت فیصلے پر عمل کرے گی۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے طارق فضل نے کہا بانی کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، وہی ان کا فیصلہ کریں گی۔ پی ٹی آئی نے ماضی میں عدالتوں کو برا بھلا کہا، وہ قابل مذمت ہے۔ آج پی ٹی آئی والے یہ تو مان گئے کہ عدالت میں انصاف ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوگل کے پاکستان آفس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم سے گوگل کے نائب صدر ولسن اور ان کی ٹیم کی ملاقات۔ شہباز شریف نے گوگل کے وفد کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں گوگل کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں اور گوگل پاکستان کے نوجوانوں اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ گوگل کے نائب صدر ولسن نے پاکستان کے ساتھ طویل المدتی شراکت داری کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کا مشن آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق زیارت، ہرنائی اور سوراب میں آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ آپریشن کے دوران 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے، ٹھکانے بھی تباہ۔ ایک دہشت گرد ضلع سوراب کے علاقہ حاجیکا میں ہلاک ہوا۔ دہشت گردوں سے ایمونیشن، میگزین، دستی بم، موٹر سائیکل اور دیگر سامان برآمد۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر سیکورٹی فورسز کی ستائش۔ کہا سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کی عکاس ہیں۔ بھارت 1 سال بعد بھی مارکہ حق میں شکست تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ آپریشن سندور کے نام پر تاریخ دوبارہ لکھنے کی بھارتی کوشش بے نقاب ہو گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت شکست تسلیم کرنے کے بجائے من پسند رنگ دینے میں مصروف ہے۔ آپریشن سندور پر بھارتی ڈاکیومنٹری حقائق مسخ کرنے کی کوشش قرار۔ پہلگام حملے کے مبینہ ملزمان 28 جولائی کو مارے گئے تو 7 مئی کو بھارت نے کس کو سزا دی؟ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارتی جارحیت ناکام بنائی۔ پاکستان میں 8 بھارتی فوجی تجارے بھی مار گرائے۔ آپریشن بنیاد مرسوس میں 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ فلمی مناظر تجاروں کے نقصان اور حقیقی جنگی حقائق نہیں بدل سکتے۔ پاکستان کو مارکہ حق پر کوئی من گھڑت بیانیہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ جنگی ریکارڈ، سفارتی رابطے اور بھارتی بیانات حقیقت
खुद बयान करते हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। आइंदा कोई मुहिम जोई हुई तो पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। भारत में गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्जामात बदनीयती पर मबनी करार। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का एक और मजहर है। इस मुहिम का मकसद भारत को दरपेश अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाना है। भारत सियासी मफादात के हसूल के लिए पाकिस्तान को मुअर्रद इल्जाम ठहराता है। भारत दहशतगर्दों की मौक़िफ़ में मुलव्वस है। बेबुनियाद इल्जामात आलमी तवज्जो भारत की तखरीबी सरगर्मियों से नहीं हटा सकते। कुलभूषण यादव भारत की तखरीबी सरगर्मियों का नाकाबिले तरदीद सबूत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सबा इंटर्नशिप 2026 के शुरा से खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती, दहशतगर्दी, इतलाती जंग और सोशल मीडिया के चैलेंजेस पर जामे गुफ्तगू। DGISPR ने तलबा के सवालात के मुतल्लिल और मुफस्सिल जवाबात दिए। शुरा के साथ खुसूसी मुलाकात की। शुरा ने DGISPR से ऑटोग्राफ भी लिए। तलबा ने DGISPR के साथ मुलाकात को सराहा। दौरे हासिल में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और बयानिए की बहुत अहमियत है। तासुर को हकीकत से हमाहंग करना बहुत जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय मीडिया ने कहा जंग में लाहौर और मुल्तान का पोर्ट तबाह कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अज़्म है कि दहशतगर्दी का खात्मा करना है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। वज़ीर मजहबी उमूर की आइंदा हज इंतज़ामात के हवाले से पेश रफ्त पर ब्रीफिंग। मुलाकात में वज़ारत मजहबी उमूर में जारी इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की आइंदा हज में आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात पर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत 2027 की तारीखों का ऐलान कर दिया। लाहौर में 12, 13 और 14 मार्च को 3 रोज़ा बसंत मनाई जाएगी। मरियम नवाज का कहना है कि बसंत 2026 की कामयाबी के बाद मार्च 2027 में लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत और जश्न का मरकज बनेगा। बसंत के दौरान मौसीकी, सकाफती सरगर्मियों और दीगर तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला ने पंजाब समेत मुल्क भर के नौजवानों, ओवरसीज पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी मेहमानों को बसंत में शिरकत की दावत दे दी। कहती हैं 12, 13 और 14 मार्च की तारीखें महफूज कर लें। मिलकर बसंत 2027 को यादगार बनाएंगे। साफ पानी की फराहमी के लिए बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत साफ पानी से मुतालिक मुसलसल छठा इजलास। मरियम नवाज की वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की पर वक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला ने हर जिला में प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। 9 जिला में 2778 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला ने इजलास से खिताब में कहा, साफ पानी की दस्तियाबी हर फर्द का बुनियादी हक है। लाहौर के इलाका चुंग बरकत कॉलोनी में दामाद ने 4 ससुरालियों को कत्ल कर दिया। फायरिंग से मुलजिम की बीवी, सास, साला और ससुर जाँ बहक हो गए। मुलजिम इमरान शौकत ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक इमरान ने समिया से 6 माह कबल निकाह किया था। समिया वाले दिन के घर में थी। इमरान उसे साथ ले जाना चाहता था। इमरान ससुराल आया और समिया को सर में गोली मार दी। उसके बाद मुलजिम ने ससुर अली खान, सास शमाइला और साले ज़ीशान को भी मार डाला। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और लेवी में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने तीसरे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का कोई मकसद नहीं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस न लिया गया तो मजीद धरनों का ऐलान करेंगे। हुकूमत कोई ऐसा काम ना करे जिससे मामलात हाथ से निकल जाएं। IPPs के मुआहिदों पर कहा जाता था मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए इक़दामात क्यों नहीं किए जाते।
बिजली की कीमत में ₹2.52 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। नेपरा के मुताबिक CPPA की दरख्वास्त पर समाअत 27 अगस्त को होगी। अफगान रजीम के 5 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में मुजाहरे। कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक के 24 शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन का खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तालिबान को जवाबदेह बनाने का मुतालबा। जनेवा में भी अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने अफगान बाशिंदों ने एहतजाजी रैली निकाली। ओमान ने आबने हुर्मुज़ खोलने की अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत की तो शदीद बमबारी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है अमरीका के पास अब भी हथियारों के वसीअ ज़खायर मौजूद हैं। ईरान सफ़ेद झंडा लहराकर सरेंडर करने का ऐलान करे। हमें ईरान के साथ तनाज़ा ख़त्म करने की कोई जल्दी नहीं। पासदाराने इनकलाब से मुज़ाकरात के लिए पसे पर्दा राब्ते का चैनल मौजूद है। आबने हुर्मुज़ पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात संजीदा और वसी पैमाने पर जारी हैं। अमरीकी LT जैरेड कुशनर का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अब तक कोई बाहमी मुफाहमत नहीं हो सकी। दोनों ममालिक के मुख्तलिफ इदारों में मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम इख्तिलाफात बदस्तूर बरकरार हैं। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब हुसैन मोहम्मदी ने अमरीकी सदर ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी। कहा हमारा अमरीका से कोई राबता नहीं हुआ। अमरीकी सदर का दावा बेबुनियाद है। ट्रंप अपनी शिकस्त और ईरान की मुकर्रर करदा शराइत तस्लीम करें। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की अमरीकी हम मनसब ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क ऐवान सदर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, ईरान और गजा में जारी जंग पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर भी गुफ्तगू की गई। तुर्क सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। ईरान मसला सफारतकारी से हल में तुर्की किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी खानदान ट्रंप हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज की कीमत अदा कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मशीर अली अकबर विलायती का कहना है कि खित्ते की सूरत हाल और ताकत के तवाज़ुन में बुनियादी तौर पर तब्दीली आ चुकी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियों की बात करते हैं और ट्रंप बहरी नाकाबंदी पर फख्र करते हैं। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान के 100 तजारे तबाह हुए। ईरान की वजीर बराए मवासलात फराजान सादिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान ने 8 तजारों की मदद से हज परवाज़ें कामयाबी से अंजाम दी। अमरीका ने ईरान के 25 सूबों में 400 शहरों पर बमबारी की। दुश्मन ने न सिर्फ हवाई अड्डे बल्कि बिजली और पानी की तंसीबात को भी नुकसान पहुँचाया। कोशिश है मवासलात का तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। अमरीकी सदर के LT जैरेड कुशनर के इसराइल और हमास से मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। गाजा जंग के खात्मे के लिए अमरीकी मंसूबे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। जैरेड कुशनर 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद इसराइल से वापस रवाना हो गए। हमास ने जंग बंदी और इसराइली फौजी इनखला को मंसूबे की शर्त करार दे दिया। ईरान जंग ने अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ मजीद गिरा दिया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक रवा माह में ट्रंप की मकबूलियत 35% से कम होकर 33% रह गई। 64% अमरीकी सदर ट्रंप की कारकर्दगी से नाला। सदर ट्रंप की गिरती हुई मकबूलियत की बड़ी वजूहात में ईरान जंग, तेल की कीमतों में इजाफा, महंगाई और जंग के तवील होने का खदशा शामिल। मशरिक़ वस्ता कशीदगी, तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $1.9 इजाफे से $90.42 फी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $1.57 इजाफे के बाद $84 फी बैरल तक पहुँच चुकी। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशों के बायस में इमरजेंसी नाफिज। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। रावलपिंडी शमसाबाद में 116, पीर बधाई में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा। इंटरनेशनल वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड कप, पाकिस्तानी परचम सरबलंद। पाकिस्तानी 11 साल कम उम्र तरीन खिलाड़ी औरंगजेब तासीर ने अपना पहला मैच जीत लिया। औरंगजेब तासीर ने सनसनीखेज मुकाबले में जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी को हराया। औरंगजेब तासीर का अगला मुकाबला उज्बेकिस्तान के दौलतबेग आलममोव से होगा।
پاکستان کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے قبل بڑا دھچکا، کپتان بابر اعظم انجری کے باعث پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ سرفراز احمد نے تصدیق کر دی، بابر اعظم کی عدم موجودگی میں سلمان علی آغا پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کی قیادت کریں گے۔ شان مسعود بھی میچ کے لیے مکمل فٹ قرار۔ بابر اعظم کینٹ کاؤنٹی کے خلاف 3 روزہ پریکٹس میچ کے دوران دائیں ہاتھ پر گیند لگنے سے زخمی ہوئے تھے۔ ٹیم ڈاکٹر کے معائنے کے بعد انہیں احتیاطاً آرام کا مشورہ دیا گیا۔ بابر اعظم کی انجری کے باعث پہلے ٹیسٹ میں قومی ٹیم کو اہم بیٹر کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی۔